کہ پاکستان مسلم لیگ نون NA-75 کے الیکشن کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس کی ہیئرنگ الیکشن کمیشن میں ہوئی. الیکشن کمیشن نے دونوں جماعت کے جو لوگ تھے ان کو بلایا, ہیئرنگ ہوئی. نوشین افتخار میرے ساتھ کھڑی ہیں, یہ NA-75 کی کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ NA-75 کے عوام کے جمہوری اور آئینی حق کی حفاظت کی. جہاں فائرنگ ہو رہی تھی, کھلی فائرنگ, اوپن فائرنگ, ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی NA-75 کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے, وہاں یہ نہتی خاتون جو NA-75 کے عوام کی آئینی اور جمہوری حق کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی, حفاظت کر رہی تھی, وہاں دلیری اور بہادری کے ساتھ کھڑی تھی. اور آج الیکشن کمیشن میں جو ہیئرنگ ہوئی اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز تھی, جب 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا, تو الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیز ایشو کی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی پریس ریلیز ہے, جس کے اندر وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے الیکشن کو پرامن بنانا تھا, NA-75 کے لوگوں کا آئینی اور جمہوری حق کی حفاظت کرنی تھی, جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا تھا, انہوں نے ہی پریزائڈنگ آفیسرز الیکشن کمیشن کے عملے کو ووٹ چوروں کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا. الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا کہ چیف سیکرٹری, IG, DPO, RPO, CCPO, DC, کمشنر, DSP سب لوگوں کے سامنے دن دہاڑے 2 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. لوگ اپنی جانوں سے گئے, گرفتاریاں ہوئیں, FIRیں کٹی, لیکن خاموش تماشائی ساری کی ساری انتظامیہ تھی. خاموش تماشائی پوری کی پوری پنجاب حکومت تھی. خاموش تماشائی جو دھاندلی کی پیداوار ہے, جو دھاندلی کا سردار ہے, جو دھاندلی کا پیروکار ہے, عمران صاحب خاموش رہے. اور ساری سازش کیا تھی جو آج الیکشن کمیشن کے اندر جس کی تصدیق ہوئی, ساری سازش یہ تھی کہ یہ جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو متنازع بنایا جائے, ان کے اوپر پوری توجہ لائی جائے, تاکہ جو 340 پولنگ سٹیشن ہیں ان پہ ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. وہاں لوگوں کو ہراساں کر کے, فائرنگ کر کے, بدماشی کر کے, غنڈہ گردی کر کے, ریاستی دہشت گردی کے ساتھ وہاں لوگوں کو ہراساں کر کے NA-75 کے لوگوں کو اپنے ووٹ, اپنے آئینی حق اور اپنے جمہوری حق سے محروم رکھا جائے. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو, ان بیٹوں کو, ان ماؤں کو جنہوں نے نوشین کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہو کر بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑے رہے اور ووٹ پر پہرا دیتے رہے. اور یہی آج موقف کی تصدیق الیکشن کمیشن کے اندر RO ریٹرننگ آفیسرز نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی. میں کیس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ سب جوڈس کیس ہے. میں ان غیر ذمہ دارانہ لوگ جو صرف نوٹنکی کرنے, تماشے کرنے اور اداروں کو مفلوج کرنے کی پیداوار ہیں, جو ابھی آپ پریس ٹاک کرنے گئے, میں اس طرف نہیں جاؤں گی. لیکن آج RO کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے, وہ آپ نے اپنے ٹی وی سکرینز پر چلائی ہے, جنہوں نے آج یہ بات ریٹرننگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ وہ پورا دن اور رات کو بھی جب یہ مسنگ پرسنز ہوئے وہ DSP کو بتاتے رہے, وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے انتظامیہ کے ساتھ اور ساری پولیس کے ساتھ, لیکن کوئی پولیس والا, کوئی انتظامیہ والا ان کو جواب دینے کو تیار نہیں تھا.
आरओ को तमाम फायरिंग की इतला थी, तमाम वाकयात की इतला थी। पूरे डस्का में और NA 75 में जो फायरिंग के वाकयात होते रहे, पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडागर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशतगर्दी होती रही, आरओ को सबका इल्म था। और आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आरओ ने फोन कर कर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की अमले की सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी खतरे में है। ये इलेक्शन कमीशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था इलेक्शन कमीशन को कि पूरे का पूरा NA 75 मैदाने जंग बना हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जान भी खतरे में है, रिकॉर्ड भी खतरे में है और हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसके बाद जो आरओ की अपनी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन जिसके ऊपर वजीर आजम सिलेक्टेड की भी तवज्जो है, धांधली की पैदावारों की भी तवज्जो है, और जिन 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ये सारा खेल खेला गया, वो उसमें से 14 फॉर्म्स में रद्दो बदल है। वो 14 फॉर्म्स के अंदर जो आरओ के पास मौजूद हैं वो टेम्पर्ड है, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में किया कि रद्दो बदल का शायबा है। वो सारा रिकॉर्ड आरओ ने आज पेश किया और उस रिकॉर्ड के अंदर 14 के अंदर रद्दो बदल है। और जो 20 मिसिंग पर्सन आरओज जो अगवा किए गए और जब वो सुबह 5:30 बजे जमा कराए गए, वो आरओज, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब सुबह 5:30 बजे आरओ के दफ्तर में इकट्ठा जमा कराया गया, डिपॉजिटेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जब उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सुबह 5:30 बजे जो मुख्तलिफ जगह से किडनैप हुए, अगवा हुए, मिसिंग पर्सन्स हुए, उन सब को जमा कराया गया इकट्ठे 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में। जो पुलिस राब्ते में नहीं थी, जो पुलिस का फोन बंद था, जो आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को राब्ता करता रहा गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फोन बंद थे, वो सारे मिल गए, वो सारे इकट्ठे हो गए, पुलिस भी राब्ते में आ गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी राब्ते में आ गए और वो सारे इकट्ठे जमा करा दिए गए 5:30 बजे। और जो आरटीएस के जरिए फॉर्म्स आए, वो आरटीएस के जरिए और 14 फॉर्म्स मैच नहीं करते, उसमें रद्दो बदल है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस को इस्तेमाल करके और जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, जो हमें पोलिंग एजेंट्स ने PMLN को दिए हैं, वो आज हमने जमा करा दिए हैं। फायरिंग की तमाम वीडियोस, जो ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग, जो लोग शहीद हुए, जो NA 75 के लोगों, अवाम के जानों को खतरे में डाला गया, खुली फायरिंग मोटर बाइक्स पे हुई और उन पोलिंग स्टेशंस के अराउंड हुई, शहर में हुई जहां PMLN का होल्ड था और जहां PTI का स्ट्रांग होल्ड था, वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दोबदल कर दिया गया। ये आरओ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और जिन्होंने किडनैप किया वो आज कहते हैं कि मैंने तो दरखास्त दे दी है कि जो 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए वो तस्लीम कर लें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 14 टेम्पर्ड हैं। जिन्होंने अगवा किए, जो कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यकीन है उन 20 फॉर्म्स पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी। और ऊपर से वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं, इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरखास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का बेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया, क्योंकि आपने अपने घर से वो PP41 से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इलेक्शन में टेम्परिंग की, धांधली की। तो आज पूरा NA 75
कि अवाम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और खाली NA-75 नहीं, पूरा पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिस तरह प्रेस रिलीज एक तारीखी प्रेस रिलीज है, उसी तरह पूरा अवाम, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते, आप वोटर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और वहां मौकफ क्या लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी लोग मरे थे, क्या हुआ अगर जानें चली गई? अच्छा जी, आज जिनके घर में सफ़े मातम है, जिनके घरों में 20-20 साल के बच्चे शहीद हुए हैं, उस इलेक्शन को, जिस इलेक्शन को आपने मैदाने जंग बनाया था, वहां आप कहते हैं कोई बात नहीं, जाने चली गई तो 2018 के इलेक्शन में भी गई थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को ये फैसले के जरिए डेटरेंस और प्रेसिडेंट कायम करनी पड़ेगी कि आइंदा आने वाला इलेक्शन इस तरह भेंट ना चढ़े वोट चोरों के, वो इस तरह अवाम की जानों के भेंट ना चढ़े, वो इस तरह के इंतजामिया पूरी की पूरी मुलव्विस हो, पूरे का पूरी पंजाब हुकूमत मुलव्विस हो, पूरे का पूरा वजीर आजम हाउस मुलव्विस हो, वजीर आजम सिलेक्टेड मुलव्विस हो। इसकी आईनी और जमहूरी हिफाजत इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि सारा रिकॉर्ड वीडियोस समेत सारा रिकॉर्ड जो 20 पोलिंग स्टेशन जिसको साजिश के लिए इस्तेमाल किया NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इलेक्शन NA-75 की जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं उनसे नजर हटाने के लिए जहां डकैती की जा रही थी, जहां दहशतगर्दी की जा रही थी, उस साजिश के लिए तमाम रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। और हम कल मजीद जो आज झूठ बोला गया इनकी तरफ से, क्योंकि इनको तो मंजूर है उस अगवाशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिकॉर्ड जो 14 टेम्पर्ड फॉर्म्स हैं NA-45, इनको मंजूर है जिन्होंने अगवा किया। हमने अपने फॉर्म्स भी जमा करा दिए हैं, वीडियोस भी जमा करा दिए हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी जमा करा दिए हैं, तमाम न्यूज आइटम्स भी जमा करा दिए हैं सबूतों के साथ। और कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 50 लाख घर नहीं मिले, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो धांधली कैसे की NA-75 में, तो धांधली करने की तैयारी थी, गुंडागर्दी करने की तैयारी थी, बदमाशी करने की तैयारी थी, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने की तैयारी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जवाब देने की तैयारी नहीं थी। यह है इनकी असल हकीकत। NA-75 पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और हमें उम्मीद है कि NA-75 की आवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं नौशीन को, जो एक बहादुर दलेर PMLN की शेरनी है, अब मैं उसको कहूंगी कि वो कुछ चीजें आपके सामने रखे जो उन्होंने आज मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिया। ये फरमा दीजिएगा कि सियासी जमातें हमेशा अपने मफाद के लिए पहले भी सोचती हैं और उसको अपने सरकार के मुताबिक ये इस्तेमाल करते हैं। जब फौज तैनात होती थी तो इस तरह के मामला नहीं आते थे और बहुत कम होते थे। आप लोगों ने फौज पर इतराज़ किया, आप तैनात नहीं होती, तो इसी तरह फिर इलेक्शन होंगे तो इसको किस तरह कहेंगे कि जिस तरह जिसकी हुकूमत होगी, चाहे PTI, पीपल्स पार्टी या नून लीग है, तो फिर वो नताइज तो अपनी मर्जी के देंगे। देखिए, इसमें भी आपको अगर हकायक मालूम हो तो जिस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने कॉल की तो रेंजर्स को भी बुलाया गया और जो भी वहाँ तानियात है, चाहे वो फौज पाकिस्तान के एहलकार हैं, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो पुलिस हैं, उनको वहाँ तानियात किया जाता है अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। और जब जब आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तब तब सवाल उठते हैं और वो उठते रहेंगे। अभी इसमें जिस तरह पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पूरी की पूरी इंतजामिया लापता, अगवा, पूरे की पूरी हुकूमत लापता। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज ये बात हुई है इलेक्शन कमीशन में कि उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो फोन नंबर्स हैं उनका फोरेंसिक करा के ये पता चलाया जा सकता है कि वो 20 के 20 किसके डेरे पे थे, वो 20 के 20 और जो ड्राइवर्स थे, क्योंकि ये जो गाड़ियां होती हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाया जाता है, जमा नहीं कराया जाता, लाया जाता है। लेकिन इस केस में उनको जमा कराया गया लाकर ताखीर के साथ, 13 घंटे 12 घंटे की ताखीर के बाद। तो वो ड्राइवर्स का भी फोरेंसिक किया जा सकता है कि वो ड्राइवर्स भी कहाँ मौजूद थे और वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। आज एक और मैं आपको बताऊं, एक और बहुत ही
इस मुल्क के लिए अलमिया है। अफसोसनाक खबर है कि परवेज रशीद साहब के जो सेनेट के कागज नामजदगी थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये परवेज रशीद का नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के लिए उस जमहूरी सिपाही को महरूम किया गया है कि जो जमहूरियत के लिए लड़ता था। और मैं ये भी बता दूं कि सेनेट की सीट परवेज रशीद साहब है, वो एक सेनेट की सीट के महरूम मिन्नत नहीं है अपने नजरिए को फरोग देने के लिए, और ये नजरिया दहाइयों से इवॉल्व होता है और तकवीयत हासिल करता है। लेकिन ये आज पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज को जो सेनेट से मुस्तरद हुए कागज, ये सेनेट का नुकसान है, ये पार्लियामान का नुकसान है, और ये पाकिस्तान में आइन की हिफाजत का नुकसान है। और मैं इसकी मजम्मत भी करती हूँ, और मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन परवेज रशीद साहब को जितना मैं जानती हूँ, जो मेरा उनके साथ ताल्लुक है, उनको इस सीट की ना जरूरत है। वो आज भी नवाज शरीफ के जमहूरियत के साथी हैं, कल भी थे, और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए जब तक उनमें जान है, जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, तब तक वो है, जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे, नवाज शरीफ के साथ रहेंगे। नवाज शरीफ के लिए जो उनकी मोहब्बत है, नवाज शरीफ के लिए जो उनकी अकीदत है, वो इस तरह नाकाम की जा सकती है ना परवेज रशीद को इससे फर्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये जंग जमहूरियत के लिए और अवाम के वोट की इज्जत और अवाम की वोट की हिफाजत के लिए परवेज का मजाक उड़ाते हैं, जो यहाँ अभी खड़े होकर अदारों की तज़हीक करते हैं, जो अदारों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो खुद गुंडागर्दी करते हैं, कंसीलमेंट करते हैं अपने फैक्ट्स और रिकॉर्ड की, वो उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते हैं। वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो जमहूरियत के पैरोकार हैं, जो जमहूरियत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हर खतरा मोल लेते हैं, उनको ऐवानों से बाहर रखने की भौंडी की जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मैं पहले कह चुकी हूँ कि परवेज इस सेनेट की सीट के महरूम मिन्नत नहीं है। वो जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। वो जहाँ खड़े होंगे ऐवान खुद वहाँ बन जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।